हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने रिट्स ज्यूरिडिक्शन के बारे बारे में पढ़ा था। रिट्स ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आज हम लोग आगे के आर्टिकल्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 33 क्या है? आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर fundamental rights. It empowers the Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of armed forces, police forces, paramilitary forces, intelligence agencies, etc. आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन बी restricted by the Parliament. अब आर्म्ड फोर्सेस में हम लोगों की कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे हम लोगों की आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो एक्सेट्रा। तो ये जो एजेंसीज हैं, पार्लियामेंट लॉ के थ्रू इनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और वो इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर सकता है क्योंकि ये एजेंसीज जो है अपनी जो ड्यूटी है वो सही से डिस्चार्ज करे और इनमें डिसिप्लिन आए। टू डिस्चार्ज their duties efficiently and to discipline these forces. Article 33 कहता है the objective of this provision is to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. The power to make laws under 33 is conferred only on Parliament, not on state legislature. Only Parliament can make laws. Only Parliament can make laws regarding this, not state legislature. जो इन फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो लॉज है वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर वो लॉज नहीं बनाएगा। Any such law made by the parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of fundamental rights. These laws cannot be challenged in any court. These laws cannot be challenged in any court.
for violating fundamental rights. The Parliament has enacted laws like Army Act 1950, Navy Act 1950, Air Force Act 1950, Police Act 1966। तो पार्लियामेंट एसेट्रा, पार्लियामेंट ने ये लॉज बनाए हैं इन फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, और इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो लॉज बनाए हैं ये इसीलिए बनाए हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये अपने ड्यूटीज को सही से डिस्चार्ज करें और इनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन हो। Parliamentary laws can also exclude the court-martial from the writ jurisdiction of Supreme Court, High Court, so far as the enforcement of fundamental right is concerned। तो पार्लियामेंट ऐसा भी लॉ बना सकती है जिसमें जो कोर्ट मार्शल है उसको भी रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से exclude किया जा सके। Parliamentary laws can also exclude the court-martial from the writ jurisdiction of Supreme Court, High Court, so far as the enforcement of fundamental rights is concerned। These impose restrictions on their fundamental rights like right to speech, to form association, to join trade union, political party, communicate with the press। The Parliament has enacted these acts to impose restriction on their fundamental rights। Restrictions on their fundamental rights like right to speech, to form association, to join any trade union or political association, to communicate with the press etc। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स बाकी सिटीजन्स को मिले हैं, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आर्म्ड फोर्सेस को इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है पार्लियामेंट ने, और इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 33 हमारा ये कहता है, it empowers the parliament to restrict the fundamental rights of the members of armed forces, police forces, paramilitary forces, intelligence agencies, etc. The objective of this provision is to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them। तो ये हम लोगों का आर्टिकल 33 है। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 ये मार्शल लॉ की बात करता है। मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। देखिए मार्शल लॉ जो है का मतलब होता है मिलिट्री लॉ, मिलिट्री रूल, मिलिट्री रूल लिटरल सेंस में। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल इन लिटरल सेंस।
और ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज बीन बोरोड, ये हम लोगों ने इंग्लिश लॉ से लिया है, हैज बीन बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है, मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट। और मैंने बताया इसका मतलब मिलिट्री रूल होता है। आर्टिकल 34 provides for the restriction on fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of India. Restriction on the fundamental rights of the citizens when the martial law when the martial law is declared on any area within the territory of India। इसमें जो है, जब अगर किसी जगह पे किसी एरिया में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के होते हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स व्हेन द मार्शल लॉ इज डिक्लेयर्ड ऑन एनी पर्टिकुलर एरिया। तो जिस एरिया में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जाएगा उस एरिया के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उनके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कि जैसे जो सिटीजन्स हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, उनके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। और ऐसे ही जो है उनकी एसोसिएशन पे, तो ये रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स पे, और जिस एरिया में मार्शल लॉ डिक्लेयर होता है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू indemnify any government servant for any act done when martial law was in force. It empowers the parliament to indemnify any government servant. Empowers the parliament to indemnify. It empowers the parliament to indemnify any government servant for any act done। पार्लियामेंट जो है, अगर जब मार्शल लॉ लगा होता है तो उसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा जो भी काम किया जाता है तो उसमें उनको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि पार्लियामेंट एक्ट बना के उनको इंडेमनीफाई, उनको रिलीफ दे सकती है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द implementation of the martial law। The concept of martial law has been borrowed from the English common law, or martial law has not been defined in our constitution। मार्शल लॉ, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। मार्शल लॉ
has not been defined, has not been defined in our कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी शब्द माइनॉरिटी जो वर्ड है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई हैं, तो वो सब एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है, मतलब उनको आपको वैसे समझना पड़ेगा। उसको प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है, बट जो आर्टिकल है, जो उसकी लैंग्वेज है, उसके थ्रू आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बारे में कह रहे थे। तो मार्शल लॉ हैज नॉट बीन डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली, इट इज नॉट एक्सप्लिसिट, इट इज इम्प्लिसिट, मतलब प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज नॉट एक्सप्लिसिट, इट इज इम्प्लिसिट, हमें इट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 को पढ़ के हमें अंदाजा लगता है, हमें लगता है कि हाँ मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो अभी हम लोग देख रहे हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्री अथॉरिटीज के द्वारा रन किया जाएगा, और जो उसमें मिलिट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके थ्रू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाएगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। और मार्शल लॉ कब लगाया जाता है? इट इज imposed under extraordinary circumstances, extraordinary circumstances, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, तो इस जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे तभी मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में किसी एरिया में वॉर हो गई हो, सिविल वॉर हो गई हो, या फिर रेबिलियन, या फिर इंसरेक्शन, इस टाइप की चीज़ें अगर हो गई हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट हो गई हो, सिविल वॉर हो गई हो, रेबिलियन हो गया हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंसरेक्शन हो गया हो आर्म ग्रुप्स का, तो मार्शल लॉ को तब मार्शल लॉ लगाया जाता है। और इसका मतलब ये होता है इट्स जस्टिफिकेशन इट्स जस्टिफिकेशन इज टू रिपील फोर्स बाय फोर्स, इट्स जस्टिफिकेशन इज टू रिपील फोर्स बाय फोर्स फॉर मेंटेनिंग रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। जो फोर्स है उसको फोर्स के थ्रू ही हटाया जा सकता है। इट्स जस्टिफिकेशन इज टू रिपील फोर्स बाय फोर्स। तो ये हमारा आर्टिकल 34 है। आर्टिकल 34 में जो है वो मार्शल लॉ की बात करता है, लेकिन मार्शल लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, और इसीलिए आर्टिकल 34 में इसके बारे में पता चलता है, इम्प्लिसिट है, बट मार्शल लॉ कहीं भी वर्ड बाय वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है। और मार्शल लॉ जो है ये हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है, इंग्लिश लॉ से लिया है। एंड मार्शल लॉ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस।
और ये इसलिए लगाया जाता है अगर कहीं सिविल वॉर हो गई हो, रेबिलियन हो गया हो, इंसरेक्शन हो गया हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में उस एरिया में मार्शल लॉ लगाया जाता है। और जिस एरिया में मार्शल लॉ लगाया जाएगा वहाँ के फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। और इसका जस्टिफिकेशन ये है कि पीस टू मेंटेन पीस एंड रीस्टोरिंग ऑर्डर, तो force can be repelled by force. Its justification is to repel force by force for maintaining maintaining order in the society. Its justification is to repel force by force for maintaining order in the society. तो ये हमारा आर्टिकल 34 है, मार्शल लॉ। इसमें सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिस जगह पे मार्शल लॉ लगा होता है। एंड हम लोगों का जो आर्टिकल 35 है, आर्टिकल नंबर 35, इसमें जो है इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। देखिए वैसे तो हम लोगों के ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसे पार्लियामेंट लॉ बनाकर इम्प्लीमेंट करती है। तो ये उसी के बारे में ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 35। पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स shall vest only in parliament and not in state legislature. Although maximum, although most of our fundamental rights are self-executory, अपने आप लग जाते हैं बिना किसी लॉ के। Although most of our fundamental rights are self-executory, but some fundamental rights require parliamentary legislation. But some fundamental rights require parliamentary legislation. तो जैसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हो गए? जैसे आर्टिकल 16 में जिसमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है जॉब्स में, आर्टिकल 16 में पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन, एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स। ये है हमारा आर्टिकल 16 में ये बात कही गई है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स अपॉइंटमेंट। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कुछ जॉब्स के लिए पार्लियामेंट ने कंडीशन ऑफ रेसिडेंस को अप्लाई किया हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उसी जगह के, उस पर्टिकुलर जगह के लोग ही उस जॉब्स के लिए अप्लाई, रेसिडेंस जो वहाँ के उस पर्टिकुलर जगह के, वही उस जॉब्स को ले सकते हैं। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स। तो ये लॉ के थ्रू पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है आर्टिकल 16 में। ऐसे ही एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन। ऐसे ही पार्लियामेंट अंडर
Article 32 can empower any other court to issue writs, orders, and directions. Parliament under Article 32 can empower any other court to issue writs, orders and directions. क्योंकि हमारे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट भी है। और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी रिट्स ऑर्डर इशू कर सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को भी ये अधिकार दे रखा है कि वो रिट्स ऑर्डर डायरेक्शन इशू कर सकता है और जो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स ऑर्डर्स डायरेक्शन इशू कर सकता है और जो आर्टिकल 32 है ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन जो हाई कोर्ट है ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है, डायरेक्शंस इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स ऑर्डर डायरेक्शन इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और ये हम लोगों का एक फंडामेंटल राइट भी है। इट इज इटसेल्फ फंडामेंटल राइट। तो इन दोनों के अलावा, इन दोनों कोर्ट्स के अलावा पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है टू इशू रिट्स ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी तक पार्लियामेंट ने ये शक्ति इन दो कोर्ट्स के अलावा और किसी को नहीं दी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट्स इशू कर सकते हैं, कोई और कोर्ट नहीं कर सकता। Restricting the application of fundamental rights to armed forces. Parliament can make laws. Parliament can make laws regarding restricting restricting the fundamental rights of the आर्म्ड फोर्सेज, जो अभी हम लोगों ने आर्टिकल 33 में पढ़ा था। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट लॉ बना के, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। ये आर्टिकल 33 जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। और ऐसे ही पार्लियामेंट कैन restrict the fundamental rights of the citizens when martial law is in force. When martial law is in force, तो पार्लियामेंट लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स के भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जब जिस एरिया में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, अंडर मार्शल लॉ इज इन फोर्स। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए भी पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। और पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट बनाया है? सिविल राइट्स एक्ट 1955। और ऐसे ही अंडर आर्टिकल 23 पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू इरेडिकेट ट्रैफिक इन ह्यूमन
बीन्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीन्स एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन बीन्स की खरीद फरोख्त, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीन्स एंड फोर्स्ड लेबर, इसके अगेंस्ट भी पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, एक्ट्स बनाए हैं इनको रोकने के लिए। तो ये अंडर आर्टिकल 35 के तहत ही बनाए हैं। आर्टिकल 35 कहता है कि ज़्यादातर हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को एक्ट बनाना पड़ता है। तो आर्टिकल 35 उन्हीं की बात करता है। आर्टिकल 35 आर्टिकल 35 कहता है कि पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स shall vest only in parliament not in state legislature। और ये जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, ये सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। लॉज मेड बाय ओनली पार्लियामेंट नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। और ये इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया। क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाएगा तो वो केवल स्टेट के अंदर ही मान्य रहेगा, स्टेट के अंदर ही वैलिड रहेगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो वो पूरी कंट्री के लिए होता है। बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसलिए पार्लियामेंट लॉज बनाती है इन चीज़ों पे, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो है वो हम लोगों का नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले हम लोगों का फंडामेंटल राइट हुआ करता था। 1978 से पहले ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ये कौन कौन से आर्टिकल में आता था? आर्टिकल 19(1)(f) में। और कौन से आर्टिकल में आता था? आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 19(1)(f) क्या कहता है? गारंटी टू एवरी सिटीजन दी राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। और आर्टिकल 31 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट डिप्राइवेशन, राइट अगेंस्ट डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी है जो वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता था, और पहले इसको मिला के हम लोगों के 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, इस अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया, और इसे लीगल राइट बना दिया। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और कौन से आर्टिकल में इसे रख दिया? अंडर आर्टिकल 300A। और कौन से पार्ट में है? पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
पहले ये हम लोगों का जब फंडामेंटल राइट था तो कौन से आर्टिकल में आता था? अंडर आर्टिकल 19(1)(f) में। और ये कहता था कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। और आर्टिकल 31 में भी आता था जो कहता था राइट अगेंस्ट डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी को पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया और इसे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, जो हमारा आर्टिकल 300A में आता है, जो पार्ट 12 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। Originally, the right to property was one of the fundamental rights under Part 3 of the Constitution. और ये जो आर्टिकल था वो इसलिए हटाया गया क्योंकि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल हो गया था क्योंकि हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए थे। आज़ादी के बाद हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए थे, तो उसमें जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, उनकी लैंड को हम लोगों ने, जो लैंडलेस लेबर थे जिनके पास लैंड नहीं हुआ करती थी, उनको भी लैंड दी गवर्नमेंट ने। लेकिन हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तो इसीलिए इसकी वजह से जब हम किसी की प्रॉपर्टी लैंड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और उस लैंड को उससे लेके किसी लैंडलेस लेबर को देंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर। तो इसीलिए कन्फ्रंटेशन बिटवीन कन्फ्रंटेशन कन्फ्रंटेशन बिटवीन गवर्नमेंट, या फिर पार्लियामेंट भी आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट, कन्फ्रंटेशन बिटवीन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। तो इसीलिए 1978 में हमने इसे खत्म कर दिया। आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 guaranteed to every person right against deprivation of his property. No person shall be deprived of his property except by authority of law. State to acquire the property on two conditions. State to acquire the property. State to acquire the property on two conditions. जब ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था तो स्टेट दो कंडीशन पर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता था। एक तो वो पब्लिक पर्पस के लिए, और पब्लिक पर्पस दूसरा, उसे कॉम्पेंसेशन पूरी पे करनी पड़ती थी, पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। अगर आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की लेते हैं पब्लिक पर्पस के लिए, तो उसे फुल कॉम्पेंसेशन स्टेट को पे करनी पड़ती थी, जब ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन अब तो ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट है नहीं, लीगल राइट है। तो क्या क्या चेंजेस आए? व्हेन इट वाज फंडामेंटल राइट, बट नाउ इट इज लीगल राइट। तो अब क्या चेंजेस आए लीगल राइट होने की वजह से? इट कैन बी रेगुलेटेड, इट कैन बी
It can be regulated, abridge, curtail, modified. It can be regulated, abridged, curtailed, modified without constitutional amendment. Without constitutional, without constitutional amendment. अब आप सिंपल ऑर्डिनरी अब आप सिंपल ऑर्डिनरी वे में इस राइट को रेगुलेट कर सकती है पार्लियामेंट. इट कैन बी रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल लॉ बट नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. भाई ऑर्डिनरी लीगल लॉ का मतलब हुआ कि हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है जो थोड़ी डिफिकल्ट होती है. तो अब इसे पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है जस्ट बाय simple majority of the parliament through the process of ordinary legal law. It protects private property against executive action but not against legislative action. Protects private property against executive या फिर against executive और government action but not against legislative या फिर पार्लियामेंट या फंडामेंटल राइट्स था तो ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के एक्शन और पार्लियामेंट्री एक्शन दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती थी. लेकिन अब जब से ये लीगल राइट हो गया तब से ये एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एक्शन के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट करेगा. लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट के थ्रू कोई लॉ बनाया गया है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी लेती है तो फिर आप ये प्रोटेक्ट नहीं करेगी. आप कोर्ट नहीं जा सकते. इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एग्री पर्सन जब ये फंडामेंटल राइट था तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे. लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. कैन नॉट गो डायरेक्टली टू दी सुप्रीम कोर्ट. अब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 226 बट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि अब ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है. एंड जो राइट टू कॉम्पनसेशन की बात की है अब वो भी गारंटीड नहीं है. नो गारंटीड राइट टू कॉम्पनसेशन. नो गारंटीड राइट टू कॉम्पनसेशन. लेकिन अभी भी इसमें बट अभी हमारे बट फंडामेंटल राइट्स कैरीज टू प्रोविजंस. अभी हमारे फंडामेंटल राइट दो प्रोविजन अभी भी कैरी कर रहे हैं बट फंडामेंटल राइट्स स्टिल कैरीज टू प्रोविजंस. पहला तो ये है कि अगर अंडर आर्टिकल 30 अगर माइनॉरिटी when the state acquires the property of a minority educational institute तब वहां पे गारंटीड राइट ऑफ कॉम्पनसेशन है. if state acquire when the state acquire property of a minority educational institution. If state acquire the if state acquire the property if state acquire the property of minority educational institution then it is compulsory
टू पे कॉम्पनसेशन, और दूसरा है आर्टिकल 31A पर्सनल कल्टीवेशन, पर्सनल कल्टीवेशन एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिट। अगर कोई किसान है, उसके पास उसकी अपनी पर्सनल लैंड है और वो स्टैट्यूटरी लिमिट्स में है, तो उसको भी अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो परमानेंट कॉम्पनसेशन देगी। जो लैंड अगर, लेकिन यही कंडीशन है, जो लैंड है वो स्टैट्यूटरी लिमिट्स में होनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ने सीलिंग लगाई है, तो उस सील, जैसे कि कोई सपोज करिए कोई पर्सन, गवर्नमेंट ने कहा है या लॉ के थ्रू की पार्लियामेंट ने लॉ लॉ बनाया है कि कोई पर्सन 12 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकता। तो अगर गवर्नमेंट उसकी 12 एकड़ लैंड एक्वायर करेगी तो उसको गवर्नमेंट को कंपलसरी कॉम्पनसेशन देना होगा, कंपलसरी पैसे देने होंगे। लेकिन अगर किसी की 15 एकड़ लैंड है तो गवर्नमेंट 12 एकड़ के तो कंपलसरी पैसे दे सकती है, देगी, लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा 3 एकड़ है उसके जरूरी नहीं है गवर्नमेंट कंपलसरी कॉम्पनसेशन दे। तो ये मतलब है इसका। When the state acquires the land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory limits, then it is must for the state to compulsory compensate the person। और दूसरा क्या था, और पहले वाले में हमने पढ़ा था अंडर आर्टिकल 30, when the state acquire the property of a minority educational institution, तब भी कंपलसरी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 एंड राइट टू प्रॉपर्टी, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया। कल के लेक्चर में, टुमारो, कल जो है वो हम फंडामेंटल राइट्स की क्रिटिसिज्म देखेंगे और फंडामेंटल राइट्स के लिमिटेशंस देखेंगे, और कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें रिजॉल्व करने की। और आप लोग ऐसे ही अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिए। आप लोगों को कोई भी आप लोगों के फीडबैक या सजेशन है वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उन पे भी पूरा वर्क करने की कोशिश करूंगा और हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूंगा और आपके लिए अच्छे लेक्चर्स लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।